Hello students and welcome to class 2 of object oriented programming with C++. In last video I explained the whole syllabus of OOP concept, that is object oriented programming with C++. In this video I am explaining basic elements of programming in C++, history of C++, applications of C++ and etc. This is the part 1 of the basic element of programming. In next video I am covering the part 2 of the basic elements of programming. So let's start with this video. So in unit 1, first topic is basic elements of programming. So every language has its basic elements. Just like English language, if you want to learn the English language, you have to know the alphabets, small alphabets, capital alphabets and grammar. Without that you cannot learn English language. Just like that, if you want to learn C++, so you have to learn the basic elements of programming language C++. So we will see what is C++. So C++ is an extension of C language. C language सी लैंग्वेज को ही एनहेंस करके सी प्लस प्लस बनाया गया है, या ये कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज को इवॉल्व करके सी प्लस प्लस को बनाया गया है. सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी. जो फीचर्स आपको सी लैंग्वेज में मिलेंगे वही फीचर्स आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेंगे. सो इसीलिए कहा गया है कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज. C++ language also supports all the functions and other capabilities of C. Because C is the enhancement of C language, that's why it supports all the functions and capabilities of C language. So program written in C can be executed in C++ little or no modification. जो प्रोग्राम आप C लैंग्वेज में लिखेंगे वही प्रोग्राम आप C++ में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं with slight change or no modification. So there is a C++ equals to C plus updating features plus OOP capabilities. So what is OOP capabilities? That is object oriented programming. As you know, you have already learned C language, that is procedure oriented language. They based on rules or procedure, but C++ language is based on object oriented. It is an object oriented programming. So what is basic difference between C and C++ language is that C language is procedure oriented and C++ is object oriented language. C language focus on procedure rather than object, but C++ focus on object rather than procedure. So we will go to the next point. So what is history of C++? Who invented the C++? So CPP language was developed at AT&T Bell. CPP means C++. ये जो लैंग्वेज है इसको AT&T Bell लेबोरेटरी ऑफ USA बाय प्रोग्रामर नेम बेजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने 1980s में बनाया था. बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने इनको इस लैंग्वेज को 1980s में बनाया था, जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर जिनका पिक आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं. ही बिगिन द डेवलपमेंट एंड वर्क ऑफ द C++ in 1980 एंड फर्स्ट मैनुअल पब्लिश्ड इन 1985. ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन C++ in 1980s and first manual was published in 1985. NC committee started developing a standard for C++ in 1990. NC कमेटी जो थी उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए, वो उन्होंने 1990 में बनाए. In 1998, C++ emerged as one of the leading programming language and becomes preferred to develop professional applications across all platforms. 1998 में C++ को लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में देखा गया और इसको ही प्रिफर किया जाता है प्रोफेशनल एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने के लिए अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म. C++ इज़ एन आउटग्रोथ ऑफ अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड BCPL, दैट इज़ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C लैंग्वेज के पहले भी एक लैंग्वेज थी जिसको हम कहते थे B लैंग्वेज, एंड दैट इज़ फुल फॉर्म इज़ BCPL, दैट इज़ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो C++ उसी का आउटग्रोथ है. बाय मार्टिन रिचर्ड्स एंड केन थॉमसन एंड B लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज.
तो ये जो बी लैंग्वेज थी इसको भी बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था बाय मार्टिन रिचर्ड्स एंड केन थॉमसन। फाइनली सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। और जैसा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज का जो इन्वेंटर थे वो थे डेनिस रिची, एंड सी प्लस प्लस के जो इन्वेंटर है वो है बेजर्ने स्ट्रॉस्ट्रैप, जिनका इमेज आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस। अब एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस मतलब सी प्लस प्लस को हम कहाँ यूज़ करते हैं या फिर हम अभी कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो CPP is a widely used programming language that is used for writing large scale commercial application for end user. Commercial application means for peoples, जो आम लोग हैं उनके लिए कमर्शियल यूज़ के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो कि हम बड़े पैमाने पर इससे हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज अभी हमने देखा है कि अभी जो लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है वो है पाइथन, उसके पहले थी जावा, बट अभी भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी बहुत सारा काम चल रहा है और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो सी प्लस प्लस में ही बन रहे हैं। सो इट इज़ वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर एंड यूज़र। हु आर द एंड यूज़र? वी आर द एंड यूज़र्स। सो मेजर एप्लीकेशंस बिल्ट यूजिंग सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का यूज़ करके कौन कौन से एप्लीकेशंस बनाए गए हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो सी प्लस प्लस का यूज़ करके बनाया गया है वो है गूगल फाइल सिस्टम, गूगल क्रोमियम ब्राउज़र एंड मैप रिड्यूस लार्ज क्लस्टर डेटा प्रोसेसिंग ऑल आर रिटर्न इन सी प्लस प्लस। ये सब गूगल फाइल सिस्टम, गूगल क्रोमियम ब्राउज़र एंड मैप रिड्यूस लार्ज क्लस्टर डेटा प्रोसेसिंग, ये सब सी प्लस प्लस में बनाया गया है। मोजिला फायरफॉक्स से आप लोग ऑलरेडी आप जानते हो। थंडरबर्ड ईमेल चैट क्लाइंट आर बोथ रिटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस। एक और एप्लीकेशन है इसका, दैट इज MySQL एंड ओपन सोर्स DBMS इज रिटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस। ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको सी प्लस प्लस का यूज़ करके बनाया गया है, लिखा गया है। Microsoft many Windows apps that you regularly use are written in C++. Microsoft जो है ये भी बहुत सारे विंडोज़ जो है आपके बने होते हैं C++ में। रॉकस्टार गेम्स, बहुत सारे गेम्स जो आप हमेशा खेलते होते हैं जो आपको पता नहीं होता है कि ये C++ में डिज़ाइन किए होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स कंपनीज यूज़ C++ ड्यू टू द शेयर स्पीड ऑन बेयर मेटल, क्योंकि C++ जो है ये शेयर स्पीड बहुत तेज़ी से शेयर हो जाती है और बेयर मेटल पे आसानी से यूज़ हो जाती है, इसीलिए मेजर गेम्स कंपनीज जो है वो C++ का यूज़ करती है गेम्स को डेवलप करने के लिए। मेनी मेजर गेम इंजिन्स आर फुल्ली रिटर्न इन C++। जो बड़े बड़े गेम इंजिन्स होते हैं, मेनी मेजर गेम इंजिन्स आर फुल्ली रिटर्न इन C++। एक और एप्लीकेशन है इसका जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं, दैट इज़ MongoDB, एन ओपन सोर्स डेटाबेस वाइडली यूज्ड एज द बैक एंड स्टोर ऑफ द वेब एप्लीकेशन। किसी भी वेब एप्लीकेशन के बैक में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप MongoDB का यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स डेटाबेस। आपको इसे कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ओपन सोर्स डेटाबेस एंड वाइडली यूज्ड एज द बैक एंड। पीछे यूज़ किया जाता है, फ्रंट एंड में वेब एप्लीकेशन जो होता है वो फ्रंट होता है और बैक एंड में आप MongoDB का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ C++। सो इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी C++ यूजेस। C++ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है? तो C++ का यूज़ हम OS ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन के साथ एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं जिनको हम हमेशा न्यू सिस्टम्स उसमें बना सकते हैं। एंड बिल्ट एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, किसी कंपनी के लिए पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं C++ का यूज़ करके। डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस भी हम इससे कर सकते हैं। कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पर बहुत इजीली कंप्यूटेशन कर सकते हैं। डिज़ाइन वेब ब्राउज़र्स, जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है वो C++ में बना है, तो हम वेब ब्राउज़र भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। टू डेवलप गेम्स, अभी हमने देखा था
कि बहुत सारी मेजर कंपनी गेम कंपनीज जो है वो C++ का यूज़ करती हैं, बिकॉज इट्स शेयर एंड बेयर मेटल पे इजीली यूज़ हो जाती है. इट इज़ यूज फॉर कंपाइलर्स ऑलरेडी हमको पता है. कंपाइलर्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि कंपाइलर्स किस लिए यूज़ होता है, टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. फिर इसके साथ हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं. तो दीज आर द यूजेस ऑफ C++. आफ्टर दैट वी विल सी applications of C++. By using C++, we can develop an applications like graphical user interface हम बना सकते हैं. मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है. ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं. ओपन डेटाबेस, ओपन सोर्स डेटाबेस बना सकते हैं, जैसे कि MongoDB बनाया था. वेब ब्राउज़र्स बना सकते हैं. लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो डिज़ाइन एन एप्लीकेशन in cloud computing using C++. These are the applications of C++. Now we will go to the next point. So basic elements, this is the first topic and it is important topic of this unit. So basic elements of programming, that is first basic element of the programming is C++ character set. तो C++ language character set comprises basic symbols called alphabets, digits, operators, delimiters and other special symbols, etc. Using this character set, keywords, statements and sentence will be constructed as per C++ language syntax rule. C++ लैंग्वेज में एक कैरेक्टर सेट होता है जिसमें हम बेसिक सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए. तो वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, operators, delimiters and other special symbols. We will see in this video in next slides. Using this character set, keywords, statements and sentence will constructed as per C++ language syntax rule. इन्हीं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, ऑपरेटर, डेलिमिटर्स और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं C++ में. सो सेट ऑफ सिम्बॉल्स आर अलाउड इन C++. कौन कौन से सिम्बॉल्स जो हैं वो हम C++ में यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से जो सिम्बॉल्स हैं वो अलाउड है C++ में. तो पहला जो सिम्बॉल अलाउड है दैट इज़ अल्फ़ाबेट लेटर्स, दैट इज़ 52. 52 ऐसे लेटर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अल्फ़ाबेट लेटर्स के यूज. दैट इज़ कैपिटल A to Z एंड उसकी ASCII वैल्यूज़ जो है वो फ्रॉम 65 to 90. ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं IT में. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज़ लोअर केस, दैट इज़ स्मॉल A to Z एंड ASCII वैल्यूज़ फ्रॉम 97 to 122. After that, the next symbol we will use in C++ programming, that is digits. There are total 10 digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And ASCII value starts from 48 to 57. We will go to the next point. थर्ड सिंबल जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स जो है C++ ऑपरेटर्स के मामले में बहुत ही रिच लैंग्वेज है. इट इज़ वेरी रिच इन ऑपरेटर्स. तो फर्स्ट ऑपरेटर इज़ प्लस. आपको पता है प्लस का यूज़ किस लिए होता है. अगर एडिशन करना होता है तब हम प्लस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब करनी होती है तब हम प्लस और माइनस का यूज़ कर सकते हैं. सो प्लस माइनस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज़ यूज फॉर डिवीज़न. मॉड ऑपरेटर, दैट इज़ यूज फॉर मॉड्यूलो ऑपरेटर. लेस देन symbol, greater than symbol, equal to, not equal to and complement operator. These are the operator which we use in the C++ programming when we design the program. After that we will see next symbols. We will use white spaces. Any character that provides blank space when printed, it's called white space. कोई भी जो कैरेक्टर होता है बाद में अगर आप स्पेस देते हो तो हम उस स्पेस को कहते हैं वाइट स्पेस. अगर आप एक ए लेटर प्रिंट करते हो, ए लेटर प्रोग्राम में कंप्यूटर पे लिखते हो और उसके बाद स्पेस की दबाते हो, तो वो जो स्पेस आपने दिया उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस तैयार हुआ है उसको हम कहते हैं वाइट स्पेस. सम वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर ब्लैंक स्पेस. कुछ कैरेक्टर्स हैं वाइट स्पेसेस में भी, उसमें है ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, new line and form field. These are the white spaces. After that we will see delimiters.
So now next symbols we will use in the programming, that is delimiters. Delimiters is a sequence of one or more character used to specify the boundary between plain text or other data stream. डेलीमीटर्स जो है ये एक सीक्वेंस है और वन और मोर कैरेक्टर यूज टू स्पेसिफाई, चीज़ों को अलग करने के लिए, वर्ड्स को अलग करने के लिए, कैरेक्टर्स को अलग करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डेलीमीटर, यूज टू स्पेसिफाई द बाउंड्रीज बिटवीन प्लेन टेक्स्ट और अदर डेटा स्ट्रीम। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है कॉमा कैरेक्टर। कॉमा कैरेक्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती है और उस लिस्ट को हम अलग अलग लिस्ट में 1 2 3 ऐसे नंबर देने के बजाय हम उसमें कॉमा लगाते हैं ताकि हम उन सबको सेपरेट कर सकें। तो कॉमा हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेपरेट। सो देयर आर मेनी डेलीमीटर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, डेलीमीटर्स जो है हम कई इसमें यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं ब्रोकन डाउन इनटू फील्ड एंड रिकॉर्ड डेलीमीटर्स। हम उनको फील्ड और रिकॉर्ड डेलीमीटर्स के इसमें यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्पेसेस डेलीमीटर्स के इसमें यूज़ कर सकते हैं, एंड ब्रैकेट डेलीमीटर्स के इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेलीमीटर सिंबल जो है वो है हैश। अब ये जो हैश है इसको हम इसका यूज़ हम लोग काफ़ी देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, हैशटैग आजकल बहुत चलता है। बट हम जब C++ में यूज़ करते होते हैं, जो भी डायरेक्टरी हम कॉल कर रहे हैं या फिर लिंक कर रहे हैं, उसके पहले हम प्री प्रोसेस करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। जो भी डायरेक्टरी होती है, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो हैश इंक्लूड iostream.h ये जो है ये प्रोसेसर डायरेक्टरी है, उसके पहले हमको हैश लगाना पड़ता है। उसके बाद है पैरेंथेसिस, दिस आर हम हिंदी में इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, दैट इज पैरेंथेसिस। इट इज़ यूज्ड फॉर फंक्शंस एंड एक्सप्रेशन। अब व्हाट इज़ फंक्शन, suppose you have created a function in your language, that C++ language, that C++ program, that is add function. So we have to write add and after that this parenthesis. So this is called function. This is used for function and expression. C is equals to C into in bracket a plus b. So there we will use in the expression. Expressions are combination of operands and operators. After that we will see curly braces डिफाइन स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट। कहाँ से स्टेटमेंट शुरू हुई है और कहाँ स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, ये हमें बताते हैं कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रोग्राम्स में, C++ के प्रोग्राम्स में। आफ्टर दैट वी विल सी स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम जनरली यूज़ सिर्फ एरे डिक्लेरेशन के लिए ही करते हैं। उसके बाद सेमी कोलन, इट टर्मिनेट द स्टेटमेंट। हमें पता है C लैंग्वेज हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है, तो सेमी कोलन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए, स्टेटमेंट को स्टॉप करने के लिए, एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए हम स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट कोलन, इट इज़ यूज़फुल फॉर लेबल। अगर किसी चीज़ को लेबल लगा रहे हैं, हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर कोई डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद में हम कोलन लगाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये लेबल है और ये इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो कोलन इज़ यूजफुल फॉर लेबल। आफ्टर दैट कॉमा, इट इज़ अ वेरिएबल सेपरेटर। सपोज आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट ABC। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, लेकिन अगर आप यही प्रोग्राम लिखते हैं इंट A,B,C, then there will no error because we have used comma and it is an variable separator. वेरिएबल को हमने सेपरेट किया हुआ है। आफ्टर दैट एंगल ब्रैकेट्स, एंड these are used for include हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स जो हम iostream.h एंड conio.h के साथ में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एंगल ब्रैकेट्स। इनका यूज़ सिर्फ वहीं पर होता है जहाँ पर हम इंक्लूड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। एंड कुछ अदर स्पेशल सिम्बॉल्स भी हैं, दैट इज़ एम्परसेंड, इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, एट द रेट, डॉलर साइन एंड कॉन्केटिनेट साइन एंड डबल इन्वर्टेड। ये स्पेशल सिम्बॉल्स हैं जो हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टर सेट। सो इस वीडियो में हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक कवर किया, दैट इज़ कैरेक्टर सेट। उस कैरेक्टर सेट में भी हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें
अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, डेलीमीटर्स हैं, वाइट स्पेसेस हैं. वाइट स्पेसेस में भी जो हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, ये सारे देखे. फिर उसके बाद हमने डेलीमीटर्स देखे. डेलीमीटर्स में हैश, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, एंगल ब्रैकेट्स और स्पेशल कैरेक्टर सिम्बॉल्स भी जो हमने देखे. एम्परसेंड, इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, हाइफन and at the rate, dollar sign, concatenate sign and double inverted sign. So these are the special. In next video I am covering the next part of this basic elements of programming. So thank you for watching this video. We will meet soon in the next video with new topic, that is part 2 of basic elements. Stay home, stay safe.